how emergence how अस्सलाम गाइस, मैं हूँ फाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं फिर से करूँगा इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज और ये हमारी इस सीरीज़ का होगा एपिसोड नंबर 5। जैसे कि आपने पिछली 4 एपिसोड्स में देखा कि मुझे इंग्लिश अभी तक सही बोलनी नहीं आई है। ये समझ लेता हूँ लेकिन अभी तक सही बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आज के चैलेंज में फिर मैंने इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है और मेरे पास 5 मिनट का ही टाइम है और मैंने 5 मिनट में कोशिश करनी है कि मैं जितनी अच्छी इंग्लिश हो सके, जितनी फ्रीक्वेंट इंग्लिश हो सके, उतनी इंग्लिश बोलूं। और उसके लिए मैं आज की वीडियो का कोई ख़ास टॉपिक नहीं रख रहा, बल्कि टॉपिक जो रख रहा हूँ ना वो है डेली रूटीन। यानी कि आज सुबह मैंने ये किया, ये हुआ, या कोई डिस्कशन जैसे टाइम मैनेजमेंट में डिस्कशन करनी है या किसी भी और चीज़ पे जो डिस्कशन करनी है ना, वो मैं आज की वीडियो में करूँगा, लेकिन इंग्लिश में। तो मैं कह रहा था कि जो डिस्कशन करनी है ना वो मैंने इंग्लिश में करनी है और 5 मिनट तक करनी है। और आप देखते हैं कि मैं कितनी फ्रीक्वेंटली करता हूँ। तो वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कर दें वीडियो को लाइक और चैनल को भी आप लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल के को आपने लाजमी दबाना है। तो अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फाइज एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर daily routine tasks and how to manage it. First of all, we have to wake up early in the morning because getting up early in the morning makes our body fresh and healthy, because morning air is fresh air and there is no pollution like noise pollution or other pollutions, and there is no work tension also, like we are getting late, we have to go to our work, we are getting late. This type of tension usually occurs when we wake up late, like if your if your office starts 8 a.m. let's say, and if you wake up at 7:50, how emergency how hectic is that 10 minutes to manage all the things and go to office. But if you wake up early, you wake up 7 a.m, you have so much time, like you can easily get a bath, easily do your breakfast and brush your teeth and all the things you can normally you can easily do this and go to your office without any tension. So I cut last 30 seconds because in last 30 seconds I am discussing about Islam, and I don't want to show any wrong thing about Islam, and anything that I say by mistake I don't want to public it. So what I am trying to say is Allah makes a very good plan for Muslims. Like first of all, when you wake up you have to pray for your good, pray for your health, pray for your wealth, pray for all the things you want. This will makes you fresh. Waking up is normally makes you fresh if you don't sleep late. Allah when here Allah makes prayer Fajr to wake us early, and there also prayer Isha, that to tell us that this is
the day. This is the end of the day, and we have to sleep in this time. Like when you sleep at Isha, after Isha, and wake up before Fajr, you have a perfect routine. And let's suppose you are so tired that your sleep is not completed in this time. After praying Isha to before praying Fajr, this is very long and huge time and perfect time to fulfill your sleeping requirements. But let's say you have a little bit requirements left, then there is a Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah that that he takes rest after Zohar prayer for 15 to 20 minutes. This makes you more healthy and more fresh, and makes you more active to do your work. So I will do little cuts. I will add little cuts in this video because I am talking about Islam, and I don't want that my words get. I don't want that you understand my words wrong. So I am placing some cuts in this speech. So ignore that cuts. Okay. And I think the 5-minute time is over. I think 5-minute time is over, and we have to end this speech. So guys, स्पीच मेरी ख़त्म हो चुकी है, और मैंने इस पर कट्स लगाए, थोड़े बहुत कट्स लगाए होंगे 2-3, और वो इस वजह से लगाए क्योंकि मैं इस स्पीच में इस्लाम के बारे में बात कर रहा था. तो इसके बाद इसी टॉपिक में मैंने पहले भी बात की है कि हमें ईशा टाइम सोना चाहिए, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सोना चाहिए, सो जाना चाहिए. मतलब बात ही सोते हैं सारे मेरा मतलब है कि ईशा की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद या जितनी जल्दी हो सके तब सो जाना चाहिए, और फजर की नमाज़ तक टाइम हमें उठ जाना चाहिए. नमाज़ पढ़ने के बाद अक्सर लोग दोबारा सो जाते हैं, और मतलब कि मुझे वो चीज़ इतनी ख़ास पसंद नहीं है. नींद तब मुझे भी आ रही होती है, लेकिन मैं फिर भी जाग रहा होता हूँ, क्योंकि फजर एक वेकअप अलार्म टाइप होता है अल्लाह की तरफ से कि उठ जाओ, सुबह हो गई है. और ईशा एक अलार्म होता है कि अब सो जाओ, रात हो गई है. ठीक है, तो अल्लाह ने हमारे लिए अलार्म्स बनाए हुए हैं. एक किस्म के नमाज़ों से हमें अल्लाह ने वक़्त का पाबंद किया हुआ है, लेकिन हम नमाज टाइम से पढ़ें तो फिर ही हम इन नमाज़ों के औकात को समझ सकें ना. जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो सुबह जो है ना, सुबह 12-1 बजे तक मैं बिल्कुल फ्रेश होता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे थकावट शुरू हो जाती है. तो जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ तो वो थकावट एक तरह की रिफ़्रेशमेंट हो जाती है मेरे लिए नमाज़ पढ़ना. और जब तो उसके बाद फिर थोड़ी सी एनर्जी होती है, वो फिर होती है कि जब असर की नमाज़ जब असर की नमाज़ का टाइम होता है तो फिर वो पढ़ता हूँ, जिससे जो है थकावट, जिससे जो है ना एक तरह की रिफ़्रेशमेंट कह लो कि मेरे लिए नमाज़ होती है. और रिफ़्रेशमेंट साइंस आज प्रूव भी करती है कि रिफ़्रेशमेंट इंसान के काम को बेहतर बनाती है. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ही लंबी स्पीच हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो वगैरह हो रही है. तो बेसिक बात यही है, बेसिक चीज़ यही सीखने को मिली है कि हमें नमाज़ों को फॉलो करना चाहिए और नमाज़ों के औकात को समझना चाहिए. जैसे कि एक छोटी सी बात ये भी ऐड करना चाहूँगा कि नमाज़ों के औकात को समझने से मुराद ये है कि जैसे कि ईशा का टाइम है फजर से पहले तक, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ईशा हम जल्दी से जल्दी पढ़ लें ताकि बाकी टाइम हम आराम से सो सकें. या फिर अगर आपकी आँख तहज्जुद टाइम खुल सकती है, आपको यकीन है कि आपकी आँख तहज्जुद टाइम खुलेगी और आप ईशा के टाइम तक बहुत थक चुके हैं, तो आप तब सो जाएं और तहज्जुद टाइम उठ के पढ़ लें. लेकिन नमाज़ नहीं छोड़नी. और ये नमाज के टाइम अल्लाह ने बनाई इसलिए था कि अल्लाह हमारी रूटीन सेट कर सके, लेकिन हम नमाज़ें पढ़ें तो फिर है ना, ये बात घूम फिर के वही आ जाती है.
کہ اللہ نے ہماری بہتری کے لیے جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں دی ہیں اور اب پھر ہم اس کو اس طرح استعمال ہی نہیں کرتے. باقی یہی تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ سیکھنے کا ملے گا. باقی اس انگلش اسپیکنگ ویڈیو میں کچھ الگ ہوا اور مجھے یہ چینج پسند آیا کیونکہ اس سے آپ کا فائدہ ہی ہوا ہے ایک طرح کا. باقی میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ. لائک اور سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے اور بیل کے آئیکن کو بھی آپ نے لازمی دبانا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ اینڈ اپنا خیال رکھیے گا اور نماز کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ اینڈ بائے.